Joseph Shine versus the Union of India, Section 497, Indian Penal Code 1860. Okay, welcome back, friends. In this video, we will cover an important article regarding the adultery. So, the very important landmark judgment we are going to discuss today, which is nothing but Joseph Shine versus Union of India. And the date of the judgment first is 27 September 2018, when the constitutional bench of the Honorable Supreme Court declared or struck down 158-year-old Section 497 of the IPC, which criminalizes the adultery. So, very important judgment is regarding the civil judge exam. This judgment is very important. So, first of all, let us see the bench. The constitutional bench means the 5-judge bench. So, first we will see the honorable judges in this judgment. So, Deepak Mishra, Honorable Justice Deepak Mishra, Justice A.M. Khanwilkar, Justice D.Y. Chandrachud, जस्टिस इंदू मल्होत्रा, ऑनरेबल जस्टिस आर.एफ. नरीमन. तो यहाँ पर जो है 5 जज बेंच ने ये बहुत अच्छा एक जजमेंट दिया है 497 का, सेक्शन 497 का ऑफ द आईपीसी, विच वी विल डिस्कस सून. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई विल स्टार्ट, लेट अस फर्स्ट सी the judgment has put forward a good initiative. First of all, it's a good initiative as it struck down section 497 IPC and section 198 of the CRPC. We will see the substance soon, because both the sections are based on discriminative classification against the women, and there are 2 reasons for that. The first reason is that it does not give women right to prosecute an adulterous husband. Okay, in the case there is a adultery where the husband is involved, so the woman is not having the right, and in the present section of 497 we will see that the woman is not having the right to file a criminal case against the husband. Here the husband was given the right to file. So as the section 497 does not give the woman right to prosecute an adulterous husband, this is the first discrimination. The second is that it does not punish a woman in adultery, not even as an abettor. Again, there is a critic we will discuss later on. So these are the 2 points which we know. Now let us see the substance of section 497, that is adultery. So whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, ठीक है, without the consent or the connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to offense of rape is guilty of the offense of adultery. यानी मान लीजिए मिस्टर एक्स की वाइफ है मिस डब्ल्यू, और कोई पर्सन है एनॉनिमस, मान लेते हैं मिस्टर सी. सो मिस्टर सी और मिस्टर जो डब्ल्यू हैं उनके बीच में एक एडल्ट्रस रिलेशनशिप है, ठीक है. तो इस केस में जो मिस्टर मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं जिनकी वाइफ थी, तो वो 497 के सेक्शन के तहत एडल्ट्री का केस प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं. किसके अगेंस्ट? जो मेल है पर्सन, जो एनॉनिमस पर्सन हमने जो सी बताया है, उनके अगेंस्ट वो कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर पहली बात है, जो मिस्टर एक्स हैं जो जिनकी वाइफ है वो और उस पर्सन सी के बीच में कोई कनाइवेंस नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, ये कोई ऑफेंस ऑफ रेप की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इस केस में जो है ये इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 497, दैट इज कॉल्ड द अडल्ट्री. So such person shall be punished, यानी मिस्टर सी जो है, he shall be punished with an imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. तो यहाँ पे जो सेक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं 497, ये हम प्रीवियस जो आईपीसी का जो सेक्शन का जो सब्सटेंस था, हम पुराने पहले सेक्शन को रीड करके देख रहे हैं कि एक्चुअली इसमें था क्या है, सब्सटेंस क्या था. तो सब्सटेंस यही था कि ऐसे पर्सन को जो है 5 ईयर्स का जो टर्म जो है डिस्क्रिप्शन जो इम्प्रिजनमेंट है 5 ईयर्स तक हो सकता है, और फाइन भी लगे इम्पोज कर सकते हैं, और ये या फिर दोनों को लगाया जा सकता है, ठीक है. एंड इन सच केसेस वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन अबेटर. तो यहाँ पर क्या था कि वाइफ को हम नहीं पनिश करते थे, ओनली द मेल पार्टनर जो होता था, जो मिस्टर एनोनिमस सी पर्सन है जो एडल्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उनको ही हम यहाँ पर उनके अगेंस्ट यहाँ पर सीआरपीसी में जो हस्बैंड था 498 में क्रिमिनल चार्जेस उन पे वो इम्पोज करवा, मतलब उनके अगेंस्ट वो कोई भी उन्हें प्रोसिक्यूट करता था या एफआईआर करता था, ठीक है.
तो यहाँ पे क्रिटिक देखिए क्या है, when the sexual intercourse takes place with the consent of both the parties. Now listen, when the sexual intercourse takes place with the consent of both the parties, यानी जो मिस्टर सी है और अगर डब्ल्यू के बीच में विद कंसेंट अगर कोई इस तरह का इंटरकोर्स हुआ है, देन देयर इज नो गुड रीजन टू एक्सक्लूड वन पार्टी फ्रॉम द लायबिलिटी। यानी जो हमने लास्ट में बोला कि वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन अबेटर, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गया, ठीक है ना। तो ये क्रिटिक है यहाँ पर कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनको तो एक्सक्लूड कर रहे हैं। ओनली द मिस्टर सी इज implicated in the case. Why not the wife is and she is equally involved, so she must be punished. So here this is the one important point. Now moving on to the forward, as we know, another important judgment previously in 2012, जस्टिस के एस कोट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा राइट टू प्राइवेसी का ये जजमेंट था। वह हम वी विल जस्ट मेंशन द रेशियो ऑफ दिस केस। ओके, so since the sexual privacy is a general integral part of right to privacy, यहाँ पर इस जजमेंट में ये मेंशन किया गया था कि जो सेक्सुअल प्राइवेसी होती है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी है। यानी अगर सेक्शन 198 का सब सेक्शन 2 देखते हैं जो सीआरपीसी का है, इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ सो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन सब के जो ये अगेंस्ट है 198 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। अब कैसे ये हम इसको बोल रहे हैं कि अगेंस्ट हो जाएगा, देखिए राइट टू प्राइवेसी यानी सेक्सुअल प्राइवेसी जो होती है एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू प्राइवेसी का। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं मिस्टर सी और डब्ल्यू यानी वाइफ के बीच में, यानी जो मिस्टर ए की वाइफ थी वो उनका जो एक अडल्ट्री रिलेशनशिप था एनोनिमस पर्सन सी के साथ। तो अभी हम यहाँ पर बात करें कि जो राइट टू प्राइवेसी है तो उन इस बात का क्या हनन होता है। तो ये जो जजमेंट है ये हिट कर रही है सेक्शन 198 को कि वह जो पर्सन एनोनिमस सी है वो बोल सकते हैं कि हमने दोनों ने कंसेंट था, वी वर एक्चुअली हैविंग द कंसेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो हाउ कैन दिस इज़ माई राइट ऑफ प्राइवेसी एंड माई आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो मेरा है वो जो है वो इसका हनन हो रहा है, इसको मतलब आप क्षति पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हिट करती है, ये जजमेंट इस सेक्शन को हिट करता है। और दूसरी बात है कि इट एक्सक्लूड वुमेन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग एनीवन एंगेजिंग इन अडल्ट्री। तो मैंने आई हैव ऑलरेडी सेड दैट द मेल पार्टनर अंडर 497 प्रोसिक्यूट्स द anonymous person C who is engaged in the adultery but not the women. But the woman is not given right to prosecute in case her husband is involved in the adultery. So it is a kind of contrary. Now moving on to the next part. In the present judgment of the Joseph Shine versus Union of India, the Supreme Court struck down 158-year-old section 497 of the Indian Penal Code, which criminalizes the adultery as unconstitutional. Okay, first point. The court, however, clarified that adultery will be a ground for divorce. यानी अब यहाँ पर अब जजमेंट की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रक्स ऑफ द जजमेंट। सो हियर द ओनली ग्राउंड दिस अडल्ट्री विल बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो यहाँ पर आपको डिवोर्स का ये ग्राउंड यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है कि अगर कोई भी इस तरह का केस है तो आप उसे डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया, लेकिन हम यहाँ पर डिवोर्स के लिए पिटीशन डाल सकते हैं, एक ग्राउंड है, ठीक है, एक रिलीफ। It was also stated that if an act of adultery leads to an aggrieved spouse to suicide, the adulterous partner could be prosecuted for the abatement of suicide under section 306 of IPC. अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इलूसिडेट करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है इट स्टेट्स दैट इफ द एक्ट ऑफ अडल्टरी लीड टू द एग्रीव्ड स्पाउस टू सुसाइड, यानी एग्रीव्ड स्पाउस इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल, मीन्स इन केस द हस्बैंड इज इन्वॉल्व इन द अडल्टरी and female women, that wife commits the suicide, then the here commits the suicide, so commits the suicide or then commits the suicide, then the case of abatement of suicide under section 306 can be filed against the adulterous partner, that is husband, and vice versa. ओके, तो यहाँ पर 306 को सेक्शन 306 को हम देखेंगे आईपीसी के रिगार्डिंग द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो यहाँ पे एग्रीव्ड स्पाउस को वर्ड द एग्रीव्ड स्पाउस विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। सो in different circumstances of the case, the decision will be taken accordingly with an application of mind. So utmost care is to be taken. Okay, now
The Supreme Court, Honorable Supreme Court, unanimously struck down Section 497 of the IPC, and that makes the adultery a punishable offense. तो ये पहले punishable offense बनाया गया था, उसको उन्होंने क्या किया है, इस जो सेक्शन का जो सब्सटेंस है उसको unanimously उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया है, यानी इसको डीक्रिमिनलाइज बोल सकते हैं या इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है. ओके सॉरी, इससे स्ट्रक डाउन कर दिया गया है. द कोर्ट स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लॉ वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. क्यों ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने बताए थे. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 है. आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोल के रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बहुत सारी भी जजमेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम सकते हैं मेनका गांधी की बहुत अच्छी जजमेंट है, जो उसमें हमारा जो इम्पाउंडिंग ऑफ द, उनका जो इम्पाउंड कर लिया गया था, ठीक है, पासपोर्ट वगैरह इम्पाउंड कर लिया गया था. तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं. हम आर्टिकल 21 के ऊपर वी कैन सी. सो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, this is also again we can say that there is a violation of article 14. So mere adultery cannot be a crime unless it attracts the scope of section 306 abatement of suicide of the IPC. तो यार ये यहाँ पर हमने 306 जो है IPC का, जब आप देखेंगे abatement of suicide देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रावधान जो है किया गया है. इसको हम इंपॉर्टेंस अब देंगे. अगर कोई दूसरा पार्टनर सुसाइड कर लेता है तो यहाँ पे अबेटमेंट का चार्ज लगेगा. आप जो भी स्पाउस है, यानी अगर हस्बैंड एडल्ट्री कर रहे हैं और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाइफ ने कर लिया है तो यहाँ पे हस्बैंड के अगेंस्ट यहाँ पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता है. ओके, द अपेक्स कोर्ट आल्सो डिक्लेयर्ड सेक्शन 198(1) एंड 198(2) ऑफ द CRPC विच अलाउज द हस्बैंड टू ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट द मैन विद होम हिज वाइफ कमिटेड एडल्ट्री. मतलब जैसे मिस्टर सी एनोनिमस जो मैंने बताए थे, उसमें क्या होता था, 198 और 1 और सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो ये CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इसके अंतर्गत जो हस्बैंड होता था उस पर्सन, यानी मिस्टर एनोनिमस जो सी पर्सन अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, उसके अगेंस्ट ये पे चार्जेस लाते थे, ठीक है, या FIR करना या ब्रिंग चार्जेस. तो वो जो पर्सन के अगेंस्ट वो करते थे इस तरह के जो 198 और 190 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के तहत, वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो यहाँ पर क्रक्स क्या निकल के आया है? तो क्रक्स निकल के आया है कि जस्टिस के पुट्टास्वामी का जो जजमेंट है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो यहाँ पे जो हमने जस्टिस के पुट्टास्वामी का भी जो ऊपर मेंशन किया है कि द सेक्सुअल प्राइवेसी इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी. यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो 198 सेक्शन जो CRPC का है, इट इज़ हिट बाई द जजमेंट ऑफ जस्टिस KS पुट्टास्वामी तो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये जो हमने डिस्कशन किया था, इट इज़ रिगार्डिंग दी अडल्ट्री 497, ठीक है, जिसका मेन हम अब से अगर कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि पहली क्रिमिनल चार्जेस जो लगाए जाते थे, जो हस्बैंड था वो क्रिमिनल जब चार्जेस लगाता था किसी भी मैन के ऊपर जो कि इन्वॉल्व था अडल्ट्री में, उन्होंने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. उन्होंने आर्टिकल 21 और 14 को दे टुक इनटू कंसिडरेशन. एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ये एडल्ट्री जो है, इट इज़ ए ग्राउंड फॉर द डिवोर्स. तो यहाँ पे ग्राउंड फॉर द डिवोर्स हैं. तो ये जो जजमेंट थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, जिसे हमने अभी यहाँ डिस्कस किया रिगार्डिंग दी एडल्ट्री एंड जो सब्सक्राइब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो thanks for listening this video.